कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस और आर्गुमेंट ढूंढा था, वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.3 का। सो बहुत इजी सम है, बट इन दिस केस यू हैव टू सिंपलीफाई फर्स्ट. Okay, you have to just convert the complex number in the form of x plus 5i initially, and then you can continue with the same technique, modulus and argument जैसे ढूंढते थे. So let's start. Therefore z equal to 1 plus 2i upon 1 minus 3i. नीचे वाले का हम लेंगे conjugate. We'll take the conjugate of the denominator 1 plus 3i. So it will be 1 plus 3i in the numerator also. Okay. Now a plus b, a minus b. नीचे में फॉर्मूला आ जाएगा a square minus b square. a plus b a minus b, a square minus b square. ऊपर में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 2 by 2 का, 2 terms 4 terms आएंगे हमारे पास. 1 into 1 plus 3i plus 2i plus 6i square. That will be the answer in numerator. Quickly कर लिया मैंने. नीचे में a square minus b square, तो that is 1 square minus 3i का square. Therefore z is equal to 1 3i plus 2i 5i 1 plus 5i. I स्क्वायर मतलब होता है -1, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9. ध्यान से देखो, पे अटेंशन. -3 का स्क्वायर 9 into I का स्क्वायर -1. सो इट विल बी z इक्वल टू 1 minus 6 minus 5 plus 5i अपॉन plus 10. 5 ऊपर से कॉमन निकाल हो गया, z इक्वल टू 5 कॉमन निकालने पे -1 plus i अपॉन 10. 5 ones are 5 twos are, so you can say z is equal to, फिर से 2 को स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा -1/2 plus 1/2 i. So here you can say therefore x is equal to -1/2 and y equal to 1/2. Therefore modulus of z is equal to under root of x square plus y square. ठीक है, modulus of z क्या है हमारा x square plus y square, and then therefore modulus of z will be given by under root of -1/2 square plus half square. That will give you 1/4 plus 1/4 2/4. Answer is 1/√2. Solve करो, आपका modulus आ जाएगा 1/√2. That will be the modulus. Then argument, yes. Therefore now argument of complex number, argument of z, that is theta. क्या फॉर्मूला है हमारा? The formula for theta is tan inverse of y by x. That is theta equal to tan inverse of minus, देखो y क्या है 1/2 and x क्या है -1/2. So it will be 2 gets cancel. tan inverse of -1 बचेगा. So 1 कब आता है 45 डिग्री, तो ये रेफरेंस हो गया. अब since x is negative less than 0 मतलब and y is greater than 0 मतलब positive, negative, yes, which quadrant? Second. It implies that theta lies in second वाला quadrant, and that implies that theta is equal to, second में entry कैसे मारेंगे? You have to go to the second quadrant. This 180 minus, इसको 180 को pi बोलते हैं. You can write 180 minus कितना? Reference angle 45. That is equal to 135 degree. Or you can say in terms of pi, radian you have to write, then it will be pi minus pi by 4. So you can say theta equal to 3 pi by 4. These are the modulus and argument. Very simple. Go through it, quickly write it. Then we'll move to the next question number 8, 9. Come on, write fast. Yes guys, so next question from our text is question number 8 हम लेंगे, because जो हमें टॉपिक पढ़ा है मॉड्यूलस आर्गुमेंट, तो उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव टेकन द सेकंड वन जो पहले ही हो गया था हमारा, उसके बाद 6 and 8 9. आफ्टर दोस रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल टेक इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड एक्सपोनेंशियल कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सॉरी, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इन दैट वी विल टेक दोस रिमेनिंग क्वेश्चंस. आ जाओ इधर, बहुत सिंपल आ जाओ. z बार का बाहर इक्वल टू z प्रूव करना है. सॉल्यूशन देखो, प्रूफ देखो. z इक्वल टू 2 प्लस 3i दिया है, तो देखो z बार क्या आएगा 2 माइनस 3i. देखो z बार जो आया है इसका बार क्या आएगा, इसका बार क्या आ जाएगा अगेन 2 प्लस 3i which is nothing but z. खत्म, सिंपल. नेक्स्ट वन, z into z बार is equal to modulus of z का स्क्वायर.
z into z bar, z LHS is equal to z into z bar is equal to 2 plus 3i into 2 minus 3i, that is equal to 2 square minus 3i का square, that is 4 minus 9 into minus 1, that is equal to 13. ये हमारा हो गया LHS. Then RHS is equal to modulus of z का square equal to under root of x square plus y square का square. मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x square plus y square, उसका square, that is equal to square and square root cancel, x square plus y square. Now tell me x की जगह पे क्या है? x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, 2 square plus 3 square, that will be 13 equal to z into z bar. Therefore you can say that LHS is equal to RHS and z into z bar is modulus of z square. This can be used as a property. Entrance में ना जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे so उसमें ये एक प्रॉपर्टी की तरह पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे तो हम ये प्रूफ करेंगे तो प्रॉपर्टी देगा. नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज z plus z bar is real. Is what? Real. Real बोला है, that is only real नंबर आएगा, imaginary नहीं आएगा. बहुत सिंपल है. देखो LHS is equal to, देखो सिंपल, z plus z bar, that is 2 plus 3i plus 2 minus 3i. Now plus 3i minus 3i gets cancelled, you get equal to 4, which belongs to nothing but real. फोर्थ वाला आप लोग कर लोगे, z into z minus z bar equal to 6i. तो इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो ब्रैकेट देना पड़ेगा. जब सब्ट्रैक्शन करोगे 2 minus 2 cancel, 3i plus 3i 6i. That is easy one. Okay. Next मूव करते हैं क्वेश्चन पे. That is question number 9. Question number 9 guys आपके लिए होमवर्क है पूरा. अगर कुछ नहीं आता तो मुझे पूछिए. एक शायद नहीं आता है तो बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है तो मैं कर दे रहा हूँ. That is फोर्थ वाला जो होता है, 9 का जो फोर्थ है वो मैं कर दे रहा हूँ. z1 upon z2 the whole bar is equal to z1 bar upon z2 bar. चलो ये मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. चलो देखो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन बाकी तो आ जाएगा आपको. z1 दिया है 1 plus i and z2 दिया है 2 minus 3i. देखो z1 upon z2 का बार करना है हमें. पहले हम z1 upon z2 ढूंढेंगे. सॉल्यूशन में उसके z1 upon z2 is equal to 1 plus i upon 2 minus 3i, that is equal to 1 plus i upon 2 minus 3i into 2 plus 3i. तो ऐसा कॉन्जुगेट हमने दिया, ऊपर में भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस. ऑफ कोर्स सो इट विल बी 2 plus 3i. नाउ मल्टीप्लाई 1 into 2 2, 1 into 3i 3i, again I into 2 2i plus 3i square upon 2 square minus 3i का square, that is equal to 2 plus 5i. ये कितना होगा? minus 3 upon 2 का square 4 minus 3 का square 9, I का square minus 1. So this will be minus 1 plus 5i upon 13. ये आया हमारा वैल्यू किसका? z1 upon z2 का वैल्यू आया. Now what you can do is conjugate. Therefore conjugate of LHS जो हमारा है z1 upon z2 का बार conjugate is equal to क्या आएगा? minus 1 minus 5i upon 13. इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो ना. अरे प्लस 5i है तो माइनस 5i. सिंपल. सर ये 13 था तो कैसे होगा? 13 स्प्लिट हो जाएगा. देखो minus 1 by 13 plus 5 by 13, तो minus 1 by 13 minus 5 by 13, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो हो गया. अब RHS सॉल्व करना है. ऑफ कोर्स RHS करेंगे तभी तो हमें समझेगा क्या आंसर आ रहा है. तो राइट हैंड साइड पे जाते हैं. राइट हैंड साइड में क्या दिया है? z1 बार अपॉन z2 बार. तो RHS में दिया है z1 बार अपॉन z2 बार. तो z1 बार क्या आता है? z1 बार आएगा, z1 is 1 plus i, तो 1 minus i divided by 2 minus 3 आएगा 2 plus 3i. Now guys same solid same way conjugate ले लो. 2 plus 3i का conjugate 2 minus 3i, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, परफॉर्म. आंसर आपका आ जाएगा minus 1 minus 5i. Of course this will be the answer which you will get. ठीक है, so guys write this down quickly. और ये क्वेश्चन नंबर 9 जैसे मैंने कहा पूरा होमवर्क है, आप करके रखिए. ठीक है, जल्दी मिलते हैं. कम ऑन, जल्दी मिलते हैं. आई विल कंटिन्यू द लेक्चर. विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन दिस वीडियो ओनली. कम ऑन, सो राइट फास्ट.
सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा, पोलर फॉर्म पहले लिख देते हैं, होता क्या है, एक्सप्रेसिंग द गिवन थिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एंगल थीटा। तो देखो क्या आएगा, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये मेरा पोलर फॉर्म है, जहां पे r मतलब आपको पता है मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू यू नो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। सर ये तो ठीक है, आपने लिख दिया पोलर फॉर्म ऐसा है, कैसे आया तो उसका प्रूफ यहाँ दे रहा हूं, ठीक है। ये आप प्रूफ देख लीजिए यहाँ पे, फिर वो प्रूफ इतना काम का नहीं, तो मैंने बस पोलर फॉर्म लिख के रखा है, उसके बारे में लिखा है, बट प्रूफ आई एम राइटिंग हियर। सी z इक्वल टू मान लो क्या होता है, x प्लस y, ठीक है ना। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय r x प्लस y है अपॉन r, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r। देखो z इक्वल टू r, स्प्लिट कर दो r को अंदर में, x अपॉन r प्लस y अपॉन r i। नाउ z इक्वल टू r इनटू x अपॉन r मतलब होता है cos थीटा। सर कैसे क्या cos थीटा होता है, अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये इंक्लिनेशन थीटा दिख रहा है ना, ये ऐसा बनाया आपने, ये y होता है, ये x होता है, और ये क्या होता है r, जो थोड़ी देर पहले अर्गुमेंट से ग्राफ में तो मैंने मॉड्यूलस आर्गुमेंट पढ़ाया पिछले सेशन में, तो उसने आपको समझा होगा। तो ये r cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू, जल्दी बोलो cos थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन r, तो x अपॉन r हो गया, cos थीटा सेम, sin थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, y अपॉन r, तो ये हो जाएगा प्लस i and y upon r is sin theta. This is the simple proof of that. Polar form, the writing this in terms of trigonometry and r. ठीक है, आगे exponential form. Exponential form मतलब क्या, just another way of expressing a complex number, that is z equal to, ध्यान से देखो, z equal to, another way of expressing the complex number is equal to r e raised to I theta। तो r तो r इधर भी है, देख लो r r सेम है, तो e रेस टू i थीटा मतलब ही होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, समझ रहे हैं। तो i तो i रहेगा, सिर्फ थीटा अगर मान लो आपका 30 डिग्री है तो आप लिख दोगे e i 30 डिग्री, 40 डिग्री है तो e i 40 डिग्री, पाई बाय 2 है तो 90 मतलब पाई बाय 2 है तो e i पाई बाय 2, r तो r ही रहेगी, तो कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना है, यस cos थीटा plus I sin theta is the value for this e raised to I theta. It is just the representation. तो आप जब हम सम्स करेंगे आपको बहुत इजी लगेगा, कुछ टफ नहीं है, 3 सम 4 सम मैक्स में करूंगा, 3 सम ही, उससे ज्यादा नहीं, बाकी आप लोगों ने करने कुछ है ही नहीं दम, ठीक है। मॉड्यूलस आर्गुमेंट करना आता है ना, टॉपिक पढ़ा ना पिछले वीडियो में, मॉड्यूलस आर्गुमेंट, बस वही करना है, r मतलब मॉड्यूलस, थीटा मतलब आर्गुमेंट, बस खत्म बात। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, विद द टॉपिक वन स्टार्ट विद, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। आई विल से first question, -1 plus root 3i, therefore comparing with z equal to x plus yi, you get z x equal to -1 and y equal to root 3, therefore r equal to under root of x square plus y square, सॉल्व करोगे 2 आएगा। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है फॉर्मूला बताना, आपका काम है सॉल्व करके सिंपलीफाई करके आंसर निकालना। देन theta equal to tan inverse of y by x, theta equal to tan inverse of root 3 by -1, in short tan inverse of minus root 3। आपको मैंने टेक्निक सिखाई थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में, तो root 3 मतलब कब आता है, 60 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा रेफरेंस एंगल। उसके बाद since x is less than 0 and y is greater than 0, इसका मतलब x is negative, y is positive। नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव पॉजिटिव देन गेस, यस यू आर राइट, सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इट इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, सेकंड में एंट्री मारनी है, सेकंड में एंट्री मारनी है, पीछे जाएंगे किससे, 180 माइनस, तो आप लिखोगे थीटा इक्वल टू पाई मतलब 180 माइनस 60 मतलब होता है पाई बाय 3, देखो पाई मतलब 180, 180 upon 3 60, तो आंसर इज 2 पाई बाय 3, ठीक है। देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या है हमारा, बोलो पोलर फॉर्म
यस, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ब्रैकेट में cos प्लस i sin थीटा, z इक्वल टू r is what here 2 into cos what is theta 2 pi by 3 plus i sin 2 pi by 3. That's the answer. अब कोई बच्चा पूछता है सर इसके आगे क्या करना है, इसकी वैल्यू डालनी है क्या? अरे भैया इसकी वैल्यू डालोगे तो यही मिलेगा ना, समझ रहे हैं? इसकी जो वैल्यू डालोगे 2 पाई बाई 3 तो आएगा -1/2, cos 2 पाई बाई 3 -1/2, तो -1/2 2 से मल्टीप्लाई करो -1, इधर ही पहुंच जाओगे. तो इतनी मेहनत क्यों की ढूंढने के लिए, उधर ही जाना था. तो इसको ही बोलते हैं पोलर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ r एंड cos. cos साइन के टर्म्स में बस इधर ही खत्म हो गया. सर नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी तो है. यस, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आता है हमारा, z इक्वल टू r e रेस टू i थीटा. तो r तो 2 है, e i थीटा क्या है, थीटा सिंपल है 2 पाई बाई 3, लिख दो 2 पाई बाई 3 इनटू i, विल राइट 2 पाई बाई 3 इनटू i. दैट्स इट, सिंपल इजी. ठीक है, खत्म, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है. मतलब सीधे दिमाग लगा के अगर आप सोचो, हमने मॉड्यूलस आर्गुमेंट ढूंढना है कि नहीं ढूंढा, तो मॉड्यूलस मतलब r, थीटा मतलब आर्गुमेंट, इधर तक तो सेम है. सिर्फ आखिरी में ये फॉर्मूले जो दो है हमारे, ये और ये फॉर्मूला, इसमें थीटा और r की वैल्यू डालनी है, मतलब मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की वैल्यू डालनी है, खत्म. पोलर फॉर्म कुछ है ही नहीं नया इसमें, वेरी सिंपल. सो आई विल टेक एनी अदर सम, आई विल टेक रैंडमली एनी वन सम नाउ. मेरी इच्छा नहीं ज्यादा कुछ करने की. मैं लेता हूं 6th वाला. 6 सम 1 + 7 है अपॉन 2 - i द होल स्क्वायर. 1 + 7i, 6th वाला z इक्वल टू 1 + 7i अपॉन 2 - i, 2 - i द होल स्क्वायर. सो देयरफॉर z इक्वल टू 1 + 7i अपॉन, ध्यान से लिखेंगे, 2 - i का स्क्वायर 4 - 4i प्लस i स्क्वायर. सर कैसे किया, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अब ये भी नहीं आता तो क्षमा करें मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं सिर्फ आपके लिए खुद को कोरोना से क्या कहते हैं संक्रमित करके सीधा ऊपर जा सकता हूँ अगर आपको ये नहीं आता तो. ठीक है, मतलब मेरी जिंदगी आप लोग के हाथ में है. अगर आपको ये नहीं आता तो जल्दी से पढ़ो और मुझे बचा लो, वरना मैं वेंटिलेटर पे लटका रहूंगा तब तक. ठीक है, अच्छा तो z इक्वल टू 1 + 7i अपॉन, सिंपलीफाई करो ना. i स्क्वायर मतलब क्या होता है, i स्क्वायर मतलब होता है -1, तो 4 - 1 कितना होगा 3, तो डायरेक्टली लिख दो 3 - 4i. इसे कॉन्जुगेट लेंगे, z इक्वल टू 1 + 7i इनटू इसे कॉन्जुगेट 3 + 4i अपॉन 3 - 4i इनटू 3 + 4i. ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन ये तो आना चाहिए यार. 1 × 3 3, 1 × 4i plus 4i, 7 × 3i plus 21i, 7 4 the 28i square अपॉन i square अपॉन कुछ गलत हो गया क्या, 21 था, मैंने वही तो सोचूं 21 कहाँ गया. हाँ, नीचे में 3 + 4i 3 - 4i 3 स्क्वायर minus 4i the whole square. z equal to 3 4 plus 21 25i minus 28 हो जाएगा. i स्क्वायर मतलब -1 minus 28 होगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 minus 4 का स्क्वायर 16 i का स्क्वायर -1 तो 9 plus 16 25 बनना. तो ये हो जाएगा z equal to 3 minus 28 minus 25 plus 25i अपॉन नीचे भी आ गया 25 ऊपर से कॉमन 25 कॉमन या स्प्लिट कर दो. -25 upon 25 -1 plus 25 upon 25 1 I, so just I. This is our answer. Therefore r equal to here x equal to -1, y equal to 1. Therefore r equal to under root of x square plus y square. Therefore सॉल्व करोगे √2 आ जाएगा. आपका आंसर आना चाहिए 1 आता है ना, आता है. ठीक है, नेक्स्ट एंड थीटा इक्वल टू tan inverse of y upon x. That is theta equal to tan inverse of 1 upon -1. That is tan inverse of -1. -1 अब 1 कब आता है 45 डिग्री या पाई बाय 4 जो भी रेडियन में लिखना है आपको.
अच्छा सर ये तो समझा हमें, लेकिन सिंस x और y की साइन देखो, सिंस x is negative and y is positive, it implies that theta lies in कौन था माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, therefore theta equal to 180 pi माइनस सेकंड में एंट्री मारेंगे तो माइनस pi by 4 that is equal to 3 pi by 4, therefore चलो बनाओ पोलर फॉर्म हाजिर हो, z equal to r cos theta plus I sin theta, तो z equal to what is r की वैल्यू √2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4, खत्म, that is our polar form। अच्छा सर एक्सपोनेंशियल, अरे एक्सपोनेंशियल लिख लो ना यार कुछ से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आता है r मतलब √2 e raised to I, थीटा क्या है 3 pi by 4, तो 3 pi by 4 r कर लेना आप लोग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इससे रिलेटेड सम्स हम और करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वगैरह, सो विल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विल टेक, बट उसके पहले ये अच्छे से लिख लो, बाकी के सारे सम्स जो मैंने छोड़े हैं आप वीडियो पॉज करो, घर पे बैठे हो वीडियो पॉज करो, सॉल्व द रिमेनिंग सम्स ऑल ऑफ देम एंड देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा मत करो कि आप दो सम्स कॉपी कर रहे हो फिर आगे जा रहे हो मेरे साथ साथ बढ़ रहे हो, हां पॉज द वीडियो, लीव द वीडियो, 4 सम करो, ये 2 और 4 सम 6 सम करो, लगे तो नहीं पढ़ना कल पढ़ो, बाद में पढ़ो, थोड़ी देर बाद पढ़ो, बट ये अभी के अभी करो सारे के सारे सम्स, ठीक है, वादा पक्का वादा, मिलते हैं दोबारा। Pause the video, write this, see you soon। Yes guys, so question number 5 हम ले रहे हैं, convert the following given complex numbers which are in polar form as well as in exponential form, उसको हम convert करेंगे in x plus y normal form, जो हमारे z equal to x plus y के फॉर्म में। तो see पहला है √3 cos pi by 6 plus I sin pi by 6, तो pi by 6 मतलब होता है 30 डिग्री, cos 30 कितना आता है √3 by 2, you can write √3 into √3 by 2 plus I into 1 by 2, ठीक है। अब √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 into 3 by 2 plus √3 by 2 I, so you can say 3√3, बस ठीक है ना, यही करना, खत्म हो गया, और कुछ है चाहिए क्या, खत्म हो गया सब, यही पे दैट्स इट। देखो z इक्वल टू ये x और ये y आ गया ना, x plus y, दैट्स द आंसर, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहां से इंटरेस्टिंग है, सर इंटरेस्टिंग क्या है, ये भी तो सिंपल होगा, हां इसके लिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पार्ट 2, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 2 पार्ट 2 है, उसमें जाइए, आपको तभी आएगा ये। आपको देखो 5 pi by 6 कॉम्प्लिकेटेड चीजों की वैल्यू ढूंढनी है जो अलग अलग एंगल्स है, इनका मैंने उसमें एक्सप्रेशन अच्छे से दिया है, यहां भी मैं बताऊंगा, बट आपको डिटेल में एकदम रीजंस का तुम्हारा समझेगा, यहां पे तो आई विल टेल यू व्हाई वी आर टेकिंग दिस वैल्यू वगैरह। लेट्स स्टार्ट, देखो ज्यादा बातें नहीं करते, सम सॉल्व करते हैं। देखो z इक्वल टू 7 इनटू cos 5 pi by 6 माइनस I sin 5 pi by 6 है। सर सटिया गए हो आप, जवानी में सटिया गए हो आप, तो क्या भाई क्यों हुआ, ऐसे क्यों सटिया गया भाई, सर इधर माइनस है आपने प्लस लिख दिया, हाँ बिकॉज cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ना, भूल गए क्या तुम, तो भले बचपन में सटिया गए हो, फिर अगर याद नहीं तो मुझे याद है, इधर sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, समझ में आया, पहले पढ़ाओ क्लियर होगा कि नहीं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज जो आपको समझनी चाहिए, cos माइनस थीटा cos थीटा, sin माइनस थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, ओके। अब 5 pi by 6 मतलब कितना डिग्री, कितना एंगल, देखो 5 pi by 6 डिग्री में करो, pi मतलब 180 होता है, ये pi by 6 मतलब 30, 5 into 30 is 150 डिग्री, 150 डिग्री मतलब क्या आएगा, देखो ये रफली कर रहे हैं आप लोगों ने, 150 मतलब इधर आएगा, ठीक है ना, तो 150 को आप लिख सकते हो, cos 150 को लिख सकते हो 180 minus 30, 180 minus 30, ये सब पढ़ाया मैंने बोला ना 180 minus 30, 180 मतलब होता है x एक्सिस, x पे नो चेंज, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे cos 30, पर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, स्लोली बोलता हूं, देखो 150 को लिख सकते हैं 180 minus 30, डन। 180 मतलब कौन सा एक्सिस, x, याद रखो हमेशा x का यूज करने का, वो वाली x नहीं, हाँ वो वाला x नहीं,
एक्स एक्सिस का बात कर रहा हूं मैं, कौन था, एक्स एक्सिस का बात कर रहा हूं, तो एक्स का यूज करेंगे, एक्सिस का, ठीक है, और उसका यूज करके हम आंसर्स निकालेंगे। तो ये 180 एक्स एक्सिस, एक्स पे नो चेंज, एक्स पे नो चेंज, एक्स बदलने देता नहीं खुद को हमें, ठीक है, सो एक्स पे नो चेंज, तो डायरेक्ट cos 30 लिख दो। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos इज नेगेटिव, सो आंसर विल बी -cos 30। So here you can say that this will be z equal to 7 cos 150 लिख दो अपनी अंडरस्टैंडिंग के माइनस I sin 150, then it is equal to z equal to 7 cos 180 minus 30। हाँ, जो उधर लिखा रफली वो तो मैंने समझा, लेकिन इधर भी लिखेंगे I sin 180 minus 30, ठीक है, so it will be z equal to 180 x पे no change, डायरेक्ट cos 30 इन कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में cos इज नेगेटिव, माइनस I sin x पे no change, sin 30 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में sin इज पॉजिटिव, तो एज इट इज रहेगा। सर आपने तो बोला पॉजिटिव, तो ये माइनस का, अरे बाबा अगर नेगेटिव होता ना तो ये ऐसा ब्रैकेट आता, बिकॉज वो ऑलरेडी माइनस था, तो ये पॉजिटिव इधर ही रहेगा, ठीक है, बस खत्म होने आ गया। बोलो therefore z equal to 7 into cos 30 कितना होता है, -√3/2 minus I into 1/2, that's it, z equal to मल्टीप्लाई करो, -7√3/2 -7/2 I, ये x ये y हो गया सफाई। समझ में आया कि नहीं, सम की हो गई सफाई, आपको करनी है अच्छे से पढ़ाई। नेक्स्ट, अब जस्ट सेकेंड होल्ड ऑन, ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सम्स, इसके से और दो सम्स करेंगे, दैट इज यूलर्स फॉर्म लेंगे हम, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर सम्स लेंगे हम, सी हियर केयरफुली। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर बेस्ड सम, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th वन, क्वेश्चन 5 का ही 4th वन, 4 e raised to pi by 3 I, z equal to है ना ये, therefore z equal to cos pi by 3 plus I sin pi by 3। अरे बाबा e raised to I theta cos theta plus I sin theta, r तो है ही नहीं, खत्म हो गया यहाँ पे, pi by 3 की वैल्यू डालो, 1 by pi by 3 मतलब 1/2 3/2, खत्म आंसर, 1/2 plus I √3/2 हो गया, आंसर खत्म हो गई, खल्लास। नेक्स्ट वन देखो, ये अच्छा है सेकंड वाला, और सेकंड मतलब 5th आएगा ये, ओके, z equal to e raised to -4 by 3 I, 4 pi by 3 I, देखो z equal to cos -4 pi by 3 plus I sin -4 pi by 3, देखो cos theta plus I sin theta is equal to e raised to I theta, हो गया, पहले एक्सपोनेंशियल को पोलर में किया। अच्छा, इसकी वैल्यू निकाली, cos minus theta अभी तो होता है, cos minus theta क्या आता है, जस्ट cos theta होता है, तो cos 4 pi by 3 ही रहेगा, माइनस सर माइनस क्यों, sin minus theta माइनस sin theta हो जाएगा 4 pi by 3, ओके, 4 pi by 3 को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो अपने कन्वीनियंस के लिए, तो pi by 3 मतलब कितना होता है 60, 4 into 60 240, यस, तो cos 240 एंड sin 240, अगर यार वो वीडियो देखोगे ना मेरा, आप लोग बहुत फटाफट करोगे, सेकंड वीडियो अपने मन से आएगा, तो cos वो वीडियो देख के करो ये सब, ठीक है, cos 240 मतलब होगा 180 plus 60, ठीक है, एंड इधर भी sin 180 plus 60, अब ध्यान से देखो, sin कौन सा क्वाड्रेंट है, यस थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस, देखो ना 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos इज नेगेटिव एज वेल एज sin इज नेगेटिव, तो दोनों के आंसर नेगेटिव आएंगे, x एक्सिस में नो चेंज, तो -cos 60 और इसका हो जाएगा -sin 60, सेम ऐसे लिखना है यहाँ पे, तो लिखेंगे इसको, लेट्स कंटिन्यू, z इक्वल टू यस cos 240 प्लस माइनस I sin 240, therefore you can write it as z equal to cos 180 minus 180 plus 60 minus I sin 180 plus 60, ठीक है, therefore z equal to 180 मतलब कौन सा एक्सिस, 180 मतलब x
x में नो चेंज, तो ये हो जाता है माइनस कॉस 60 बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस i, इसका देगा माइनस साइन 60 बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हो जाएगा z इक्वल टू माइनस कॉस 60 प्लस i साइन 60, ठीक है। सो आप आंसर लिख दो इसका, माइनस 1/2 प्लस √3/2 i x एंड y, ठीक है। सो बहुत इजी सम्स थे, करिए आप अच्छे से, एक एक सम दोनों का मैंने रख दिया आपके लिए होमवर्क। डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर लिख के भेजिए मुझे, ओके। सो गाइस, दिस इज अबाउट पोलर फॉर्म एंड योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Do solve these sums on your own. Try to solve these sums on your own. Easy topic, not at all difficult. Okay. So goodbye. Take care. See you soon. Bye bye.